Friends, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our new lesson, the Hunter Dresses Part 1. Okay, of first flight. Before we start the lesson, let me tell you the lessons which are cut from our syllabus. So this is first poem, How to Tell Wild Animals. This poem is cut from your syllabus. Then this poem, The Trees, is cut. Lesson number 8, Mitchbill the Otter, is cut. Poem Fog, and at last the poem For Annie Grualdi. Okay, these are cut from your syllabus. Of our second book, already I have told you that which lessons are cut, and this is your first book, First Flight, and out of this also now I have told you put ticks which lessons are cut. So let's start our lesson. So before starting the lesson, there is a small paragraph about the Polish American community in the United States. Why they have given it? Because the story which we are going to read is about a Polish girl. Okay. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles means the Polish people, migrated to United States. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity, and ethnicity means nation. जब वो वहाँ पे आए तो उनके लिए कोई ऐसे अलग प्लेस नहीं थी, ठीक है। तो उनके जहाँ से आए थे उनके नाम से उनको जाना जाता है, जैसे दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स। क्लियर कि कहाँ से आए हैं ये लोग, पोलिश पीपल, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन चिकागो and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next to the Warsaw, the capital of Poland. क्लियर हो गया कि चिकागो जो है उसको शिकागो जो है उसको पॉलिश सिटी कहा जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jews. ठीक है, तो क्या बताया गया कि इनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जैसे पहले इटालियंस एंड ज्यूस वगैरह के साथ हुआ करता वैसे इनके साथ भी होता था. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस 667.414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. वैसे आप लोगों को ये लर्न नहीं करना है, बट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस बिकॉज दिस थिंग विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड दैट Polish people were discriminated in America. So the story which we are going to read, The 100 Dresses, this is also a story of one girl, Polish girl, okay, Wanda. So let's start our lesson. Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. यानी जो पैगी एंड मेडलाइन है, ये दोनों हमेशा वांडा का क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे. तो मंडे फर्स्ट है, मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन उसकी सभी ने मतलब कि वांडा जो है वो प्रेजेंट नहीं थी, बट किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि वो अपनी सीट पर नहीं है. The girls who started all the fun noticed her absence. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. तो वांडा यूजुअली कहाँ पे बैठती थी, लास्ट सीट पे बैठती थी, ठीक है, लास्ट सीट पे बैठती थी, रूम नंबर 13, लास्ट रो. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. कहते हैं ना कि बैक बेंचर्स, जो अच्छे मार्क्स नहीं लेते, जो पढ़ते नहीं हैं, वो बच्चे बैठते थे और वहीं पे उसको बैठना पड़ता था. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज नॉट
scuffling of feet. There was more scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said. यानी कि क्योंकि देखो जो लड़के शरारती होते हैं, स्कफलिंग मीन्स नॉइज़, क्योंकि शरारती लड़के जो होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं तो वो पीछे शोर वगैरह करते हैं, तो वो ऐसी जगह पे बैठती थी जहाँ पे पाँव की आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, रोर हंसने की आवाज़ें वो सबसे ज़्यादा होती थी, बॉयज़ वगैरह करते थे। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और बहुत ही गंदी प्लेस थी, मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा। ठीक है। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything. मतलब कि रियलिटी में तो वो बहुत शांत रहने वाली लड़की थी। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ लाउड, किसने उसको कभी भी जोर से हंसते हुए नहीं देखा था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, थोड़ी बेकार सी स्माइल, क्रूड अजीब सी। ठीक है, थोड़ी सी स्माइल ज़रूर देती थी, बट दैट वॉज ऑल, सिर्फ स्माइल देती थी, कभी हंसती नहीं थी जोर जोर से। तो राइट वन क्वेश्चन हेयर, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यूजुअली सैट इन लास्ट रो। थोड़ा सा चेंज कर लो, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट इन लास्ट रो। ओके, इसके अलावा जो आपके यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसको कवर कर रहे हैं इस पार्ट को पूरे को। ओके, सो द टाइम व्हेन nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. किसी को एग्जैक्टली नहीं पता था कि वांडा वहाँ पे क्यों बैठती है, बस एक चीज़ पता था कि वो क्या है, बोगिंस हाइट से आती थी। वो जो एरिया था वो मिट्टी वाला एरिया था सारा। ठीक है, एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पाँव है वो हमेशा मिट्टी से भरे रहते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोस्की वन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. तो वैसे स्कूल, पूरे स्कूल के टाइम में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। उसकी तरफ ध्यान कब दिया जाता था, दोपहर के टाइम जब छुट्टी होती थी, या सुबह के टाइम जब वो स्कूल आ रहे होते थे उस टाइम। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. The next day, Tuesday, यानी मंडे को भी नहीं थी, तो नेक्स्ट डे क्या था, ट्यूसडे। Wanda was not in school either and nobody noticed her absence again. But on Wednesday, this is the third day, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. और लास्ट वेडनेसडे को क्या हुआ, पैगी और मैडी जो कि फ्रंट की सीट्स पे बैठती थी, उन बच्चों के बीच में जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जिनके पाँव भी गंदे नहीं होते थे, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा नहीं थी। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। शी वॉज प्रेटी, शी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल। ठीक है, वो जो पैगी है वो बहुत सुंदर लड़की थी, पॉपुलर थी, और मैडी भी उसके साथ रहती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्यों उसको नोटिस किया, क्योंकि उसके कारण वो लेट हो गए। दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडंट कम। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोस्की टू हैव फन विद हर। ठीक है, उनकी मोस्टली आदत क्या थी, वेट करके उसका मजाक उड़ाना, बट उस टाइम ऐसा नहीं हो पाया। So these are the questions you have to do today. Bye students.